So this is very easy topic, little bit of theoretical topic. So every year one question arises in JEE Mains. Okay, so one question is asked in JEE Mains, and this is sure question and easy question. Okay, so in this topic we are going to study basic logics like OR and conjunction and disjunction, implication, biconditional kind of things. Okay. So first we should talk about a basic thing, that is statement. In terms of maths, what is a statement? Can anyone explain? What is a statement? If we talk in terms of maths or mathematical reasoning, then what do you mean by this word statement? So if you read here the definition part, okay, so statement is something which is either true or false. I mean, if you read a statement, if you read a sentence, you can conclude either it is a true or a false. Then you can say it is a statement. Okay, if you have both simultaneously, I mean some ambiguity in it, so you can't say this is a statement. If it has some ambiguity in it, then you can't say it is a statement. Okay, so that must be either true or either false. These two words are quite important, either true or either false. So statement is something that is either true or false, but not both. Statement cannot be both simultaneously. Okay, so there are few things that will help us to identify whether given sentence is a statement or not in terms of mathematical reasoning. Okay, so first thing here is no sentence is called statement if it is an exclamation. I mean, if statement has some exclamation mark in it, so how wonderful day is it kind of things. So we cannot say these kind of statements are a valid mathematical reasoning statement. Okay, like, okay, so first point is clear to you. Okay, if we talk about second point, if we have some kind of order and request, or we can say some command is given in a sentence, okay, then we can say this is not in the category of mathematical reasoning statement. Okay, so second point is we have to avoid all those sentences in which either command is given, some order is given, or some request is made. So all those sentences are not included in mathematical statement. Okay, so first point is clear to you, and second point is now clear to you. So is there any confusion up to these 2 points? All right. So it is a question. So we also avoid a sentence if it is a question, like how many numbers. So this is just a question. We can't conclude whether it is a true or a false. Okay. So we also exclude if it is a question. Okay. So hello Ariman. Yes sir. So हम बेसिकली स्टेटमेंट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि स्टेटमेंट मैथ्स के टर्म्स में क्या होता है, ठीक है। तो हम उसके डेफिनेशन पार्ट पे डिस्कस कर रहे हैं कि स्टेटमेंट या तो ट्रू होगा या क्या होगा, स्टेटमेंट ऑलवेज फॉल्स होगा। अगर हम किसी भी सेंटेंस को पढ़ के ये कंक्लूड कर पाए कि आइदर वो ट्रू है और फॉल्स, तो हम ये बोल सकते हैं कि वो मैथ्स के टर्म में एक स्टेटमेंट है। ये बात समझ में आती है? बेसिकली हम मैथमेटिकल रीजनिंग पढ़ रहे हैं, यहाँ से एक क्वेश्चन आता है हमेशा जेईई मेंस में, और वो बहुत इजी होता है, बट उसके कुछ बेसिक से फंडामेंटल्स हैं, वो हम डिस्कस कर रहे हैं।
ठीक है। तो सबसे पहली चीज आती है कि हम मैथ्स में किसी भी चीज को स्टेटमेंट कब कह सकते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास कोई गिवन सेंटेंस है, अगर उसको पढ़ के अगर आप ये कंक्लूड कर पाओ कि वो स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है, उसमें कोई एम्बिग्युइटी नहीं होनी चाहिए, साइमल्टेनियसली वो बोथ सेंस नहीं देना चाहिए ट्रू और फॉल्स का, ठीक है। तो अगर वो आइदर ट्रू है आइदर फॉल्स है, एक ही सेंस देख रहे हैं, ठीक है, तो वो स्टेटमेंट बोली जाएगी इन टर्म्स ऑफ मैथमेटिक्स, ठीक है, मैथमेटिकल रीजनिंग। अब हमारे पास ये कुछ पॉइंट्स है, अगर ये पॉइंट्स इन्वॉल्व होते हैं उस सेंटेंस में तो वी कैन डायरेक्टली एक्सक्लूड दैट सेंटेंस, वी कैन से दैट that given sentence is not a mathematical statement. So first point is if it is an exclamation, अगर statement में कोई भी exclamation है like how wonderful day is it kind of things, okay, पहला point clear है? यस सर, ये चैप्टर का नाम क्या? मैथमेटिकल रीजनिंग। ओके, पढ़ा है पहले? नो सर, सिलेबस में नहीं था। अच्छा, यहाँ से जेईई मेंस में एक क्वेश्चन आता है, ठीक है, और इजी होता है वो। सो बिल्कुल थोड़ा सा थ्योरेटिकल चैप्टर है बट इजी है, ठीक है। तो कुछ बेसिक चीजें हैं वो जाननी जरूरी है। तो पहली चीज थी स्टेटमेंट, तो स्टेटमेंट के बारे में क्लियर है, कोई दिक्कत? नो सर। अब देखो स्टेटमेंट कौन कौन नहीं होगा, ये कुछ पॉइंट्स है जो हमें पकड़ने हैं। अगर ये पॉइंट गिवन है तो हम उसको सिंपली बोल सकते हैं कि वो स्टेटमेंट नहीं होगा। पहला आ गया एक्सक्लेमेशन, ठीक है। सेकंड है वो ऑर्डर और रिक्वेस्ट नहीं होना चाहिए। अगर मैंने बोला क्लोज द डोर, ओपन द डोर, ठीक है, गिव मी की, तो इस तरह के कोई भी सेंटेंस है वो कभी भी मैथ्स के टर्म में स्टेटमेंट नहीं बोले जाएंगे, क्योंकि ओपन द डोर का कोई सेंस नहीं निकल रहा ना ट्रू और फॉल्स के टर्म्स में। हाँ यस, वो क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर वो क्वेश्चन हुआ तो भी हमें किसी क्वेश्चन को ट्रू और फॉल्स की कैटेगरी में नहीं कैटेगराइज कर सकता, ठीक है, तो वो स्टेटमेंट में नहीं जाएगा, ठीक है। फिर बात आती है हमारे पास फिर फोर्थ स्टेटमेंट की, उसमें इस तरह के वर्ड नहीं, वेरिएबल वर्ड नहीं इन्वॉल्व होने चाहिए, ठीक है। फिर बात आती है हमारे पास उसमें इस तरह के हियर देयर वेयर जिनका कोई सेंस ना निकल रहा हो ट्रू और फॉल्स के केस में, इस तरह के वर्ड्स नहीं होने चाहिए, ठीक है। उसमें प्रोनाउंस नहीं होने चाहिए। कुछ बेसिक हिंट्स हैं, अगर ये हमें उसमें दिखते हैं तो बेसिकली वी कैन से दैट इज नॉट ए स्टेटमेंट, ठीक है। चलो अब कुछ एग्जांपल की बात करते हैं। तो देखो पहला सेंटेंस पढ़ो, ये वाला, न्यू दिल्ली इज इन इंडिया, ये बात ट्रू है या फॉल्स है? पढ़ के हम ये कंक्लूड कर पा रहे हैं कि ये ट्रू है या फॉल्स है? ट्रू है, तो इसका मतलब ये एक स्टेटमेंट है, ठीक है। बात समझ में आई? यस सर। सेकेंड स्टेटमेंट पढ़ के क्या कंक्लूड कर पा रहे हो? एवरी रेक्टेंगल इज ए स्क्वायर, ये ऑलवेज तो ट्रू नहीं है, तो हम ये यही बोलेंगे जो स्टेटमेंट ऑलवेज ट्रू नहीं है वो फॉल्स है। हाँ यस। तो ये भी एक स्टेटमेंट होगी। अगर हम बात करें इसकी थर्ड वाले की, तो बताओ ये स्टेटमेंट होगा? नो, बिकॉज ये इसमें क्या इन्वॉल्व है, इसमें कमांड है। हमने बोला था पहले ही कोई ऑर्डर रिक्वेस्ट कमांड कभी भी स्टेटमेंट में नहीं जाएगा, क्योंकि ना तो क्लोज द डोर, ना तो ये ट्रू है ना ये फॉल्स है, इससे कोई सेंस थोड़ी ना निकल रहा है ट्रू और फॉल्स का, ठीक है। अब देखो ये जैसे क्वेश्चन दिया है हाउ ओल्ड आर यू, तो ये क्वेश्चन की कैटेगरी में आ गया, बट ये ट्रू और फॉल्स की कैटेगरी में कुछ कैटेगराइज कर पा रहे हैं इसे? नो, तो ये भी एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट नहीं होगा, ठीक है, ये भी एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट नहीं होगा। अगर हम बात करें कोई इस तरह की अनसर्टेन स्टेटमेंट हो, x इज ए नेचुरल नंबर, अब हमें x की वैल्यू नहीं पता, बट अगर x मान लो कुछ लिख दिया होता फाइनाइट तो हम बता सकते थे कि वो ट्रू है या फॉल्स है। तो इस तरह की चीजें भी जनरली स्टेटमेंट में नहीं जाती, ठीक है, क्योंकि यहाँ से भी कोई ट्रू या फॉल्स कंक्लूड करना पॉसिबल नहीं है ना जब तक x नहीं पता। यस सर। तो ये एम्बिग्युइटी है, ठीक है। तो अगर हमारे पास कोई एम्बिग्युइटी है, आंसर क्लियर नहीं है ट्रू और फॉल्स, उसको पढ़ के तो हम सिंपली बोल सकते हैं वो स्टेटमेंट नहीं है मैथमेटिकल रीजनिंग में। अगर वो ट्रू और फॉल्स का आंसर देता है तो हम बोल सकते हैं कि वो स्टेटमेंट है, ठीक है। ये इतनी सी बात है और ये काम भी नहीं आएगी कहीं, ठीक है, बट हमें जानना जरूरी है कि स्टेटमेंट होती क्या है, यस सर। ठीक है। सर एक बार ऊपर करना वो हाँ, जहाँ स्टेटमेंट की डेफिनेशन वो देख।
सर ये लिखूं नीचे जो स्टेटमेंट जो नहीं होता है? ये लिख लो अगर लिखना है तो। आइदर ये सब एनसीईआरटी से उठाया मैंने, अगर एनसीईआरटी में देखोगे तो ये बेसिक चीजें मैंने एनसीईआरटी से उठाई है। ठीक है, नोट डाउन करना चाहते हो तो कर लो, कुछ पॉइंट्स है जैसे कि वो ट्रू और फॉल्स होना चाहिए, अपने अपने वर्ड्स में लिख लो उसे। हाँ सर, दो हो गया? एक मिनट। सर हो गया। चलो, अब ये एग्जाम्पल तो क्लियर होंगे तुम्हें? ठीक है, एग्जाम्पल तो बहुत सारे मिल जाएंगे बुक में। ठीक, Yes. देखो यही सारे पॉइंट इन्वॉल्व होंगे जहाँ भी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। सिंपल स्टेटमेंट, ये कैटेगरी है फर्स्ट स्टेटमेंट की। सिंपल स्टेटमेंट क्या होता है भाई? देखो लॉजिकल बात है, इसमें कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है। सिंपल चीज क्या होगी जिसे हम ज्यादा ब्रेक ना कर पाए? तो कोई एक ऐसा स्टेटमेंट जिसका ब्रेक करना पॉसिबल नहीं है एक से ज्यादा स्टेटमेंट में। अब जैसे मान लो ये पढ़ो, 2 इज एन इवन नंबर, क्या हम इसको 2 स्टेटमेंट में ब्रेक करके लिख सकते हैं? हेलो सर। तो ये एक सिंपल स्टेटमेंट हो गया। ठीक है, सेकेंड चीज ये पढ़ो, इसका क्या ब्रेक करना पॉसिबल है? इससे 2 सेंटेंस बनाए जा सकते हैं। हेलो सर। ठीक है, तो ये सब सिंपल स्टेटमेंट हो गई। जैसा हम पढ़ते थे ना सिंपल एंड कंपाउंड, जो सेंटेंस में पढ़ते थे, इंग्लिश में पढ़ा होगा थोड़ा बहुत कुछ। ठीक है, उसी तरह की चीज है ये कुछ डेफिनेशन वाइज। तो ये तो बिल्कुल सिंपल सी बात है। अगर हम किसी स्टेटमेंट को एक से ज्यादा पार्ट में ब्रेक नहीं कर सकते तो वो सिंपल स्टेटमेंट है। अगर उसका ब्रेक करना पॉसिबल है, जैसे नेक्स्ट में, ठीक है, अगर एक कंपाउंड स्टेटमेंट वो स्टेटमेंट होगी जिसको हम एक से ज्यादा में ब्रेक कर पाए। तो जैसे मान लो आप पढ़ो, ये वाला सेंटेंस पढ़ो, अब देखो इसके 2 पार्ट बनाए जा सकते हैं। हाँ यस। 11 is both odd and prime, तो मैं पहला स्टेटमेंट ये लिख सकता हूँ 11 is odd नंबर, और दूसरा स्टेटमेंट ये लिख सकता हूँ 11 is prime नंबर। तो मैं इसको 2 पार्ट में ब्रेक कर पा रहा हूँ, एक इसमें और एक इसमें। तो इस तरह की स्टेटमेंट जिसमें एंड और लग गया, जिससे 2 स्टेटमेंट निकाली जा सकती है, ठीक है, वो क्या होगी? कंपाउंड स्टेटमेंट होगी। ठीक है, और ये जो 2 पार्ट है इन्हें क्या बोलते हैं? कंपोनेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंपोनेंट ऑफ स्टेटमेंट्स। ठीक है, जो हमने एक स्टेटमेंट को ब्रेक किया है वो उसके क्या है? 2 कंपोनेंट है। ठीक है, यस। तो इसमें कुछ खास नहीं है, ये बस समझना है कि हम किससे क्या मतलब है। ये इन वर्ड्स का बस मतलब पता होना चाहिए, कोई ज्यादा इनसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा इस पार्ट से। क्वेश्चन जहां से पूछा जाएगा लॉजिकली वहां मैं समझाऊंगा। ठीक है, बस ये हमें थोड़ा अंडरस्टैंडिंग के लिए पता होना चाहिए। तो इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग वैसी है जैसी हमें पहले से इंग्लिश में थी कुछ। ठीक है, तो समझ रहे हो यहाँ तक? अब देखो यहाँ से थोड़ी चीजें इंपॉर्टेंट है, ये चीजें हमें काम आएंगी। जो हम ये टेबल बनाएंगे ना हमेशा, ये काम आएंगे। ठीक है, अब ध्यान से समझना। अब देखो कंजक्शन, कंजक्शन वैसे इंग्लिश में भी पढ़ा होगा तुमने। कंजक्शन कुछ होता है जो जोड़ने का काम करता है। ठीक है, सो मैथ्स की टर्म्स में कंजक्शन का मीनिंग होगा एंड। एंड और ये 2 वर्ड आपने पढ़े होंगे, हमने सेट थ्योरी में भी पढ़े थे, फिर हमने उसमें भी पढ़ा था, क्या बोलते हैं, पीएनसी में भी एंड और। तो एंड जो है इसका सिंबल जनरली होगा ये उल्टा वाला, और जो होगा इसका सिंबल होगा ऊपर वाला। ठीक है, तो पहले ये बताओ एंड और के सिंबल्स में कोई दिक्कत?
क्योंकि सारा जो क्वेश्चन है वो सिंबल्स के टर्म्स में आएगा आगे। अब देखो, जब भी हमें कंजक्शन लगाना हो किन्हीं दो स्टेटमेंट में, तो एंड वाला लॉजिक लगाना है। तो एंड वाला लॉजिक क्या कहता है, इसे बोलते हैं ट्रुथ टेबल। इसे क्या बोलते हैं, ये टेबल बनाना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अब देखो, एक हमारे पास स्टेटमेंट है P, एक स्टेटमेंट है Q। तो P क्या क्या हो सकता है, P या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा या फॉल्स या ट्रू। तो देखो साइमल्टेनियसली Q क्या हो सकता है, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। तो ये चार पॉसिबिलिटी है, ये समझ में आती है। जैसे हम एक कॉइन को दो बार टॉस करते हैं, उसी तरह की चार पॉसिबिलिटी। yes, अब देखो एंड वाला लॉजिक लगेगा। तो एंड वाला लॉजिक क्या कहता है कि अगर दोनों चीजें ट्रू है तभी आंसर ट्रू होगा, अदरवाइज कोई एक चीज ट्रू है तो आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इस केस में यहाँ पे दोनों ट्रू थे तो फाइनल आंसर ट्रू आया। yes sir, ठीक है, ये कुछ प्रोग्रामिंग जैसी चीज है जिसमें एंड किस तरह का काम करता है। एंड का मतलब होता है, थोड़ा बहुत प्रोग्रामिंग का आइडिया है सी या C++? yes पाइथन का है, हाँ, पाइथन में भी लॉजिकल ऑपरेटर पढ़ते हैं ना, yes, उसमें एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर होता था, yes sir, याद आया कुछ? तो ये एंड उसी तरीके से काम करेगा, अगर दोनों ट्रू तो ट्रू, ठीक है, अगर एक भी फॉल्स तो फॉल्स, एक भी स्टेटमेंट फॉल्स तो फॉल्स रिजल्ट देगा। ये उसका फाइनल आउटपुट रिजल्ट है। वहां हम 0 1 0 1 खेलते थे, ठीक है, पाइथन में। yes, तो ये हमारा कंजक्शन का ट्रुथ टेबल है। तो कंजक्शन का ट्रुथ टेबल बनाना आना चाहिए और लिखना आना चाहिए। देखो अगर मैं लिखना चाह रहा हूँ P कंजक्शन Q, तो हम इसे रीड कर सकते हैं P कंजक्शन Q, और अब मैं बोल सकता हूँ P एंड Q, क्योंकि इसको हम शॉर्ट फॉर्म में जनरली एंड ज्यादा बोलेंगे, क्योंकि ये हमें एक कंफर्टेबल लगता है एंड बोलना। बार बार कंजक्शन बोले तो ये दिक्कत देगा, मतलब एक कंफर्टेबल नहीं देता। तो हमें एंड का लॉजिक समझ में आना चाहिए और इसका ट्रुथ टेबल बनाना आना चाहिए। ये P है, ये Q है, ठीक है, तो ये ट्रू, ये ट्रू, ये फॉल्स, ये ट्रू, ये ट्रू, तो ये फॉल्स, और फिर दोनों फॉल्स। ये चार पॉसिबिलिटी होगी P Q की। ये बात समझ में आई कैसे लिख रहे हैं? yes sir, अब इनका कंजक्शन स्टेटमेंट बनाते हैं। तो कंजक्शन स्टेटमेंट कब ट्रू होगा, जब दोनों ट्रू हो। बाकी सारे केस में क्या होगा, फॉल्स फॉल्स और फॉल्स। बताओ ये लॉजिक समझ में आया नहीं आया? yes, चलो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है डिसजंक्शन। डिसजंक्शन में को हम बेसिकली और से यूज करेंगे। इसका सिंबल होगा उल्टा वाला, ठीक है। तो डिसजंक्शन में क्या बोला जाएगा, और वाला सेंस देगा। जो लॉजिकल ऑपरेटर में और वाला सेंस आता था ना, अगर एक भी स्टेटमेंट ट्रू तो कंबाइंड स्टेटमेंट ट्रू। यहाँ पे देखो दोनों में से दोनों ट्रू है तो फिर भी ट्रू है, इनमें से कोई एक भी ट्रू है तो भी ट्रू है, इनमें से कोई एक भी ट्रू तो फिर भी ट्रू, लेकिन दोनों ही फॉल्स हो गए तो ये फाइनल आंसर क्या होगा, हमारा फॉल्स होगा। ठीक है, ये और वाला लॉजिक है, समझ में आया? yes, तो इसका टेबल बनाना आना चाहिए और इसे हम रीड कर सकते हैं P और Q, और या फिर हम ये डिसजंक्शन बोल सकते हैं। ठीक है, अब बार बार डिसजंक्शन बोलने के बजाय P और Q बोलते हैं हम सिंपली इसको, ठीक है, और सिंबल ये यूज करते हैं। तो इसका ट्रुथ टेबल समझ में आ रहा है कैसे बनाना है? yes, चलो, ये ट्रुथ टेबल हमारी काम की है, बस ये बनानी आनी चाहिए हमें, और ये सिंबल्स का मीनिंग समझ में आना चाहिए कि उसका मीनिंग क्या है। ठीक है, अब देखो नेगेशन। नेगेशन मतलब वो होता है जो हम पढ़ते थे नेगेटिव कर देना किसी स्टेटमेंट का। नेगेटिव मतलब उसका अपोजिट लिख देना, ठीक है। तो इसके लिए जो सिंबल यूज करते हैं हम, ये टिल्टेड ऐसे यूज करते हैं, ठीक है, किसी भी स्टेटमेंट के आगे ये लगा देंगे ऐसा सिंबल, तो वो उसका नेगेशन पढ़ा जाएगा। नेगेशन मतलब उसका अपोजिट सेंस देगा। जैसे मान लो ये स्टेटमेंट पढ़ो, पी वाली स्टेटमेंट, न्यू दिल्ली इज ए सिटी, तो इसका नेगेशन बनाया। इसका नेगेशन लिखने के ये कुछ तरीके हैं। तो देखो न्यू दिल्ली इज नॉट ए सिटी, तो इसका मतलब इसमें नॉट का सेंस आ गया, इसका अपोजिट सेंस आया नहीं आया, बताओ? yes, तो नेगेशन का मतलब वही है, हमें किसी सेंटेंस का नेगेटिव बनाना है, ठीक है। उसका जो सेंस पहले ट्रू था तो अब सेंस फॉल्स होना चाहिए, पहले सेंस फॉल्स था तो अब सेंस क्या होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए। समझ में आ गया बात? उल्टा करना है। तो नेगेशन का ट्रुथ टेबल बनाए। अगर मान लो P कोई स्टेटमेंट है, वो पहले ट्रू थी तो उसका नेगेशन लेंगे तो वो क्या बन जाएगी, फॉल्स।
भाई अपोजिट हो जाएगी। यस और पहले कोई चीज फॉल्स थी उसका नेगेशन लेंगे तो वो क्या हो जाएगी ट्रू, बस उल्टा कर देना है। तो हमने 3 लॉजिक पढ़े अभी तक, एक एंड लॉजिक, एक और लॉजिक और एक नेगेशन लॉजिक। बताओ इन तीनों में कोई दिक्कत? नेगेशन को कई बार एक और वर्ड यूज कर लिया जाता है, कॉन्ट्रापोजिटिव। क्या यूज कर लिया जाता है? इसका मतलब भी सेम है, कई बार क्वेश्चन में ये वर्ड भी लिखा मिलेगा। तो इसका मतलब भी क्या है, हमें नेगेशन लेना है, ठीक है। बोलेगा कि किसी गिवन स्टेटमेंट का कॉन्ट्रापोजिटिव, तो इसका मतलब उस गिवन स्टेटमेंट का नेगेशन लेना है, ठीक है। यस अब बात आती है कंडीशनल की। कंडीशनल मतलब इंप्लाइज वाला, P इंप्लाइज Q, इसे हम पढ़ते हैं P इंप्लाइज Q, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, देखो ये हमें बोल रहा है P इंप्लाइज Q, ठीक है। अब देखो अगर दोनों ट्रू है तो इसका मतलब रिजल्ट आउटपुट इंप्लाइज वाला भी तो ट्रू ही आएगा। भाई पहली कंडीशन भी ट्रू है और जो उसको इंप्लाई करना चाहिए वो भी ट्रू है, तो इसका मतलब ओवरऑल P इंप्लाइज Q पूरा ट्रू होगा या नहीं होगा? हाँ यस भाई P पे डिपेंडेंट है Q, ठीक है। अब P भी ट्रू है और Q भी ट्रू है, तो इसका मतलब ये इसका जो सेंस है वो भी तो ट्रू आएगा नहीं आएगा, बताओ। यस अब बात करते हैं सेकंड की। P तो ट्रू है लेकिन Q फॉल्स हो गया, इसका मतलब देखो P इंप्लाइज Q था, फाइनल रिजल्ट फॉल्स हो गया। तो फाइनल रिजल्ट फॉल्स होने के क्या मायने निकले कि ये ओवरऑल पूरी स्टेटमेंट फॉल्स हो गई। भाई ये ट्रू था और ये फाइनल रिजल्ट फॉल्स हो गया, तो इसका मतलब कि पूरा स्टेटमेंट फॉल्स हो गया नहीं, इंप्लीकेशन वाला ही फॉल्स हो गया। जो फाइनल रिजल्ट Q था वो फॉल्स हो गया, तो इसका मतलब इस स्टेटमेंट का सेंस फॉल्स हुआ नहीं हुआ? फिर से रिपीट करना। देखो हम बोल रहे हैं P इंप्लाइज Q, तो P एक नेसेसिटी है और उसका रिजल्ट Q है, ये बात समझ में आ रही है? हाँ यस अब रिजल्ट ही फॉल्स है तो ये जो इंप्लीकेशन वाली चीज का पूरा सेंस है वो फॉल्स होगा नहीं होगा? यस चाहे पहली वाली स्टेटमेंट ट्रू रही हो चाहे फॉल्स रही हो, ठीक है। इससे ये इसके ट्रू होने से क्या कुछ फर्क पड़ेगा जब तक ये ट्रू ना हो? भाई हमें तो ये इंप्लाइज कराना है, अगर इंप्लाइज वाली चीज ही फॉल्स आ रही है तो इसका मतलब इसका सेंस फॉल्स हो गया, यस ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं थर्ड में, मान लो P तो फॉल्स था लेकिन जो इंप्लाइज कर रहा था वो ट्रू हो गया, मतलब जो रिजल्ट है वो ट्रू है, तो इसका मतलब इसका सेंस क्या काउंट होगा, ट्रू काउंट होगा नहीं होगा? यस ठीक है। अब अगर हम बात करें दोनों ही फॉल्स हो गए, भाई P भी फॉल्स हो गया और Q भी फॉल्स हो गया, तो अब देखो P पे डिपेंड कर रहा था Q, अब P ही नहीं आया तो इसका मतलब Q क्यों आएगा? जो इसकी बेसिक कंडीशन थी, बेसिक नेसेसिटी थी, वही फुलफिल नहीं हुई, वहां से ही स्टॉप हो गया, तो Q का ट्रू होने का कोई सेंस बना फिर? यस रिपीट करना। अब देखो इसने बोला कि P डिपेंड्स ऑन Q, इसका मतलब क्या हुआ, P इंप्लाइज Q, ठीक है। जब P फॉल्स हो गया और Q भी फॉल्स हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों फॉल्स है, तो ये इंप्लीकेशन ट्रू हुआ नहीं हुआ? यस देखो इधर से उल्टा समझो, Q से रिजल्ट फॉल्स है तो इसका मतलब ये भी फॉल्स हो गया, तभी ये फॉल्स, बेसिक कंडीशन पे ये डिपेंड कर रहा था। अब इधर से स्टार्ट करें कि कोई बेसिक कंडीशन फुलफिल नहीं हुई तो इसका आउटपुट क्या होना चाहिए, ये फॉल्स होना चाहिए नहीं होना चाहिए? यस तो इसका मतलब ये बात सही हुई या नहीं हुई? यस तो इसका आउटपुट क्या आएगा, ट्रू आएगा। अब देखो इसको ध्यान से देखो, ये एक ही केस में फॉल्स होगा तब जब हमारा फाइनल आउटपुट फॉल्स हो, ठीक है, समझ में आई बात? यस बाकी सब केस में ये क्या होगा, ट्रू होगा, कंडीशनल। तो कंडीशनल का ट्रूथ टेबल एक बार फिर से देख लो, ये P है, ये Q है और ये P इंप्लाइज Q है, ठीक है। तो हमारे पास 4 पॉसिबिलिटी होती है, ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू और फॉल्स फॉल्स। अब देखो सबसे पहला केस, ट्रू ट्रू में तो कोई दिक्कत नहीं है, रिजल्ट ट्रू ही आएगा, बताओ।
हाँ यस अब देखो, अगर फाइनल स्टेटमेंट फॉल्स हो गई लेकिन पहली वाली ट्रू है, ठीक है, ये तो बस बेसिक कंडीशन है कि इतना तो होना चाहिए। P एक बेसिक कंडीशन है बट Q फाइनल रिजल्ट है अपने आप में। इसको ऐसे समझो, P बेसिक कंडीशन है लेकिन Q फाइनल रिजल्ट है। बेसिक कंडीशन फुलफिल हुई लेकिन फाइनल रिजल्ट फॉल्स हो गया, तो इसका मतलब ये ओवरऑल स्टेटमेंट फॉल्स हुई नहीं हुई सेकंड केस में? हाँ, तो यहाँ पे क्या आ गया? फॉल्स। अब थर्ड वाली स्टेटमेंट पढ़ो भाई। बेसिक कंडीशन क्या थी? फॉल्स रह गई, लेकिन हमारा फिर भी इम्प्लीकेशन ट्रू आया, तो इसका मतलब ये पूरी कंडीशन ट्रू काउंट होगी नहीं होगी भाई? फाइनल रिजल्ट, ठीक है। अब इसकी बात करें, ना तो बेसिक फुलफिल हुआ ना इम्प्लीकेशन फुलफिल हुआ, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ तो ये भी नहीं हुआ, तो इसका सेंस क्या निकला? ट्रू निकला नहीं निकला? यस ठीक है, तो ये इसका ट्रुथ टेबल है। तो इसमें बस ध्यान रखने वाली बात ये है कि ये इस केस में फॉल्स होगा, बाकी सब जगह ये ट्रू होगा, ठीक है, एम्प्लॉइज वाला। इसे बोलते हैं हम कंडीशनल, ठीक है। ये इसका ट्रुथ टेबल है। तो बताओ इसमें कोई कंफ्यूज है? यस ठीक है, थोड़ा इसको पढ़ोगे तो थोड़ा और समझ में आएगा, बट इतना थ्योरेटिकल ज्यादा मैं जाना नहीं चाह रहा, बस हमें ये काम की चीज है, तो यही समझनी है कि हमें टेबल कैसे बनाना है, ठीक है। यस नेक्स्ट आता है बाई कंडीशनल। तो टू स्टेटमेंट P एंड Q आर कनेक्टेड बाय ए सिंबल, दैट इज ऐसा कोई सिंबल बना दिया जाए, तो इस सिंबल को हम बोलते हैं बाई कंडीशनल, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? P इफ एंड ओनली इफ Q। P होगा इफ एंड ओनली इफ Q, ठीक है। अब जैसे मान लो ये वाला एग्जांपल पढ़ो पहले, तो इस एग्जांपल को पढ़ के क्या समझ में आ रहा है? कि 1 तभी 7 से छोटा है जब 2 भी 8 से छोटा है। हाँ, ठीक है। अब देखो इसका ट्रुथ टेबल कैसे बनाना है, ये इतना ज्यादा हमें ध्यान नहीं देना, इसकी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। सीधा इस पे ध्यान दो। अब देखो ये P है ये Q है, अगर दोनों ट्रू है तो ये बात ट्रू होगी भाई। देखो इस स्टेटमेंट को रीड करो, इफ एंड ओनली इफ, तो इसका मतलब क्या हुआ? P इफ एंड ओनली इफ Q, ठीक है। तो यहाँ पे देखो Q हुआ ट्रू तो P भी ट्रू है भाई। इसने क्या बोला? P इफ एंड ओनली इफ Q, तो अगर Q ट्रू है तो P ट्रू है, इसका मतलब ओवरऑल ट्रू है। यस अब देखो Q फॉल्स हो गया, तो इसका मतलब Q तो कुछ भी हो, P से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसका मतलब बाई कंडीशनल का रिजल्ट क्या हो गया? फॉल्स हो गया, यस ठीक है। और अगर ये ट्रू हो गया फाइनल वाला लेकिन ये फॉल्स हो गया, तो अब देखो इसने क्या बोला? P इफ एंड ओनली इफ Q, ठीक है। अगर Q होगा तभी P हो सकता है, ठीक है। तो इसका ओवरऑल सेंस क्या हुआ? दोनों या तो ट्रू या तो फॉल्स। ठीक है, तो इसका मतलब इसका ओवरऑल सेंस क्या हो गया? फॉल्स हो गया। अब देखो इसमें सीधी सी काम की बात ये है, ठीक है, अगर हमारे पास दोनों वैल्यू सेम हो, इसको पहचानने का तरीका देखो बस। अगर दोनों वैल्यू सेम हो, या तो आइदर दोनों ट्रू हो या दोनों फॉल्स हो, तो हमारे रिजल्ट ट्रू आएंगे, ठीक है। अदरवाइज अपोजिट हो तो रिजल्ट फॉल्स आएंगे। इतना ध्यान रखो बस, काम की चीज ये है बाई कंडीशनल में, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है लॉजिक में, ठीक है। ये बात पकड़ में आ रही है तुम्हें? अगर दोनों दोनों स्टेटमेंट मैच कर रहे हैं ट्रू ट्रू, तो वो क्या होगा? ट्रू, ठीक है। अगर दोनों फॉल्स फॉल्स है तो वो क्या होगा? ट्रू। अगर दोनों अपोजिट है तो क्या हो जाएगा? फॉल्स, ठीक है। यस चलो अब आता है ट्यूटोलॉजी। ट्यूटोलॉजी क्या होता है? किसी भी चीज को हम सोल्व करें और सारे रिजल्ट क्या आ जाए? ट्रू 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 आ जाए, तो उस तरह की स्टेटमेंट को हम क्या बोलेंगे? ट्यूटोलॉजी बोलेंगे, कि वो ऑलवेज ट्रूथ है, ठीक है। यस ये एक वर्ड है, ये एक टर्म है, तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर किसी भी चीज को हम सोल्व करें, कोई भी स्टेटमेंट को, जैसे ये गिवन स्टेटमेंट दे रखी है, इसको सोल्व किया गया तो फाइनल रिजल्ट ट्रू ट्रू आ गया, तो इस स्टेटमेंट को मैं बोल सकता हूँ ये ट्यूटोलॉजी है,
अब जैसे मान लो हम सोल्व करते हैं जो गिवन है, हमें क्या दिया है P, ये वाला सिंबल, फिर नेगेशन दिया हुआ है P एंड Q का। हम अपने ट्रुथ टेबल बनाते हैं, इसको छोड़ दो। अब देखो ये P है, इसको क्या रीड करते थे हम, और रीड करते थे भाई। इसको अगर डिकोड करें तो ये क्या है, P और ये नेगेशन है, Yes, sir. ये एंड है और ये Q है। सिंबल को डिकोड करना है। Yes, sir. अब ट्रुथ टेबल बनाते हैं। सबसे पहले इसमें कितनी स्टेटमेंट है, 2 स्टेटमेंट है P एंड Q। तो एक P लिख लो, एक Q लिख लो। 4 पॉसिबिलिटी है वो लिख लो। पहले दोनों ट्रूथ, फिर एक फॉल्स एक ट्रूथ, ठीक है, ये ट्रूथ तो ये फॉल्स और ये फिर दोनों फॉल्स। ये बात समझ में आई? Yes, sir. अब देखो हमें क्या करना है, ये कंपाउंड स्टेटमेंट बनानी है। तो सबसे पहले हमें इसका एक पार्ट P है, इसका एक पार्ट P है। तो P तो हमारे पास है यहाँ पे। अब हमें कौन सा पार्ट चाहिए, ये वाला पार्ट चाहिए नहीं चाहिए? सबसे पहले हम ये बनाने की कोशिश करते हैं P एंड Q। तो बताओ P एंड Q में पहला रिजल्ट क्या आएगा? True. ट्रू। दूसरा False. फॉल्स। तीसरा False. फॉल्स और चौथा भी। False. अब इस पे क्या लगाना है, इस पे क्या लगाना है हमें? Negation. नेगेशन। तो अगला हम बनाते हैं, इसी पे नेगेशन लगा देते हैं। इसी पे नेगेशन लगाएंगे तो इसका मतलब ये वाली जो लाइन हमने लिखी है इसका अपोजिट लिख देना। ये ट्रू से क्या हो जाएगा, फॉल्स। बाकी सब क्या हो जाएंगे, ट्रू ट्रू ट्रू। बताओ यहां तक समझ में आया? Yes, sir. अब हमें फाइनली बनाना है ये चीज। तो ये क्या था, P, ये सिंबल कौन सा है, और का, एंड ये वाला क्या है, नेगेशन P एंड Q। यही है। मैं थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ इसको। तो हमें ये बनाना है, हमें बनाना है P और नेगेशन ऑफ P एंड Q। तो इसका मतलब हमें P वाला देखना है और ये जो आउटपुट आया ये वाली टेबल देखनी है। तो इसका मतलब हमें इन दोनों टेबल को मैच करना है और इनके बीच कौन सा ऑपरेटर लगाना है, और ऑपरेटर। तो बताओ पहले दोनों से क्या रिजल्ट आना चाहिए? True. और में कोई भी एक ट्रू तो ट्रू। इन दोनों में क्या रिजल्ट आना चाहिए, ट्रू। इन दोनों में क्या रिजल्ट आना चाहिए, ट्रू। और इन दोनों में ट्रू। अब देखो तो इस स्टेटमेंट के, इस कंपाउंड स्टेटमेंट के सारे आउटपुट ट्रू आए हर पॉसिबल केस के लिए, हर पॉसिबल P एंड Q के लिए आए, नहीं आए? तो इस स्टेटमेंट को मैं बोल सकता हूं इज ए, ये एक वर्ड है जो हम यूज करेंगे इस तरह की स्टेटमेंट के लिए जब सारे आउटपुट उसके ट्रू हो फॉर ऑल पॉसिबल इनपुट्स। ओके, Yes. तो ये चीज समझ में आई? इसी का अपोजिट, अगर ये सारे सारे आउटपुट फॉल्स आ जाए, ठीक है, तो उसे हम कॉन्ट्राडिक्शन बोलते हैं। अगर सारे आउटपुट फॉल्स आ जाए तो उसे कॉन्ट्राडिक्शन, या एक और वर्ड यूज किया जाता है फलेसी, ठीक है, ये बोला जाएगा कॉन्ट्राडिक्शन या फलेसी। ठीक है, अगर हमारे पास सारे आउटपुट क्या आ जाए, उसके फॉल्स फॉल्स फॉल्स, नेगेटिव 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 आ जाए, ठीक है। अब देखो इसको सोल्व करके दिखाता हूँ, मुझे ये वाला एग्जांपल है। तो पहले ये बताओ, ये समझ में आया कॉन्ट्राडिक्शन क्या होगा या फलेसी क्या होगी? Yes. टोटोलॉजी वो जहाँ पे सारे आउटपुट ट्रू आए ऑल पॉसिबल इनपुट के लिए, ठीक है। कॉन्ट्राडिक्शन या फलेसी वहां जहाँ पे सारे आउटपुट फॉल्स आए फॉर ऑल गिवन इनपुट के लिए। तो कंपाउंड स्टेटमेंट ये दी हुई है। पहले कंपाउंड स्टेटमेंट देखते हैं जिसके लिए हमें बनाना है P और Q, फिर बीच में एंड लगा हुआ है यहाँ पे है नेगेशन ऑफ P एंड नेगेशन ऑफ Q, यही है। तो यहाँ पे हमने P लिखा, यहाँ पे Q लिखा। तो सबसे पहले P के लिए 4 पॉसिबिलिटी लेनी है अपनी। ठीक है, ये समझ में आया। अब एक कंपोनेंट ये है इसका, तो सबसे पहले ये वाला कंपोनेंट बना दो।
ये कौन सा ऑपरेटर है? ये और वाला, तो रिजल्ट क्या आएगा? ट्रू ट्रू ट्रू, और ये फॉल्स। बताओ ये वाला कंपोनेंट बन गया। अब हमें ये वाले कंपोनेंट चाहिए था, इसके लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिएगा? इसका नेगेशन चाहिएगा और क्यू का नेगेशन चाहिएगा, ये चाहिएगा। यस सर। भाई तभी तो ये लगा पाएंगे उसमें। तो पी का नेगेशन, पी को पढ़ो उसका अपोजिट लिख दो, तो क्या हो गया? फॉल्स। फिर बताओ पी का नेगेशन समझ में आया? यस सर। अब क्यू का नेगेशन लिख दो, ये ट्रू था तो ये क्या हो गया? फॉल्स। ये अब इनके बीच क्या लगाना है? एंड। तो इसका मतलब पहले अब ये कंपोनेंट बनाते हैं। अब बताओ इन दोनों में एंड ऑपरेटर लगेगा, तो ये रिजल्ट क्या आएगा? फॉल्स आएगा। ये रिजल्ट में कैसा आएगा? फॉल्स। ये फॉल्स। ये ट्रू। अब इस कंपोनेंट में और इस कंपोनेंट में हमें क्या लगाना है? बीच में एंड लगाना है फिर से। फाइनली हमें ये बनाना है पी और क्यू एंड नेगेशन ऑफ पी एंड नेगेशन ऑफ क्यू। तो इन हमें ये वाला टेबल देखना है और ये वाला टेबल देखना है, ठीक है? तो बताओ ट्रू और फॉल्स, तो फाइनली क्या आएगा? फॉल्स आएगा, क्योंकि बीच में कौन सा ऑपरेटर है? एंड। यस सर। यहाँ फॉल्स और यहाँ ट्रू, तो फॉल्स आएगा। यस सर। यहाँ फॉल्स यहाँ ट्रू, तो फिर से फॉल्स आएगा। फॉल्स। और इन दोनों में भी फिर से क्या आएगा? फॉल्स। तो सारे आउटपुट फॉल्स आए, तो ये क्या हो गया? एक कॉन्ट्राडिक्शन हो गया या फैलेसी हो गया, ठीक है? यस। तो ये दोनों चीज समझ में आ गई। ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है, ट्यूटोलॉजी और ये कॉन्ट्राडिक्शन। यस। और इसी तरह का क्वेश्चन दिया रहेगा, उसको इसी तरीके से बनाना है और रिजल्ट रीड करना है, बस ये काम है, ठीक है? यस। अब नेगेशन ऑफ कंजक्शन, ठीक है? अब ये डी मॉर्गन लॉ है। डी मॉर्गन लॉ जानते हो? हाँ यस। अब देखो ये वही चीज है जो हम यूनियन और इंटरसेक्शन में करते थे। तो इसका मतलब क्या है? नेगेशन लिया हमने पी एंड क्यू पे, तो अगर इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये एंड किस में कन्वर्ट हो जाएगा? और में। उसमें क्या होता था? यूनियन किस में कन्वर्ट हो जाता था? इंटरसेक्शन में, याद है? यस। तो बस उल्टा हो गया। तो इसको क्या लिख सकते हैं? नेगेशन ऑफ पी। अब ये एंड था तो इधर और आ गया, ठीक है? और क्या हो गया? नेगेशन ऑफ क्यू। ये समझ में आई बात? यस। जस्ट डी मॉर्गन लॉ है जो हमने सेट थ्योरी में पढ़ते हैं। कि हम सेट थ्योरी में क्या पढ़ते थे? ए यूनियन बी का क्या ले? कॉम्प्लीमेंट्री ले तो किसके इक्वल होगा? ए कॉम्प्लीमेंट्री इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट्री, यही तो पढ़ते थे। यस। तो यहाँ पे देखो, अगर ये अब वहां पे हम बात करें तो ये यूनियन किसके लिए होता था? और के लिए। इंटरसेक्शन किसके लिए होता था? एंड के लिए। वहां भी तो यही वर्ड यूज करते थे। यस। सेम चीज है, कोई डिफरेंट चीज नहीं है, बट हमें टेबल बनाने में ये हेल्प करेगा कई बार। तो हमें बस ये ब्रेक करना आना चाहिए। इसमें बताओ कोई दिक्कत? अब ये उसका है, क्या बोलते हैं, और वाले का दूसरा वाला डी मॉर्गन लॉ है कि अगर हमें इस पे नेगेशन लेना हो तो ब्रेक करेंगे तो ये और किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एंड में। यहाँ पे और था तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एंड पे। और नेगेशन क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। सेम चीज है। तो बताओ इसमें कोई दिक्कत? ठीक है, चलो। अब देखो ये ना, ये काम की चीज है एक। अगर मैं बोलता हूं कि P implies Q है, P implies Q, ये कौन सी स्टेटमेंट है? कंडीशनल स्टेटमेंट है, याद है? यस।
अगर इसका नेगेशन लिया जाए, अगर नेगेशन लिया जाए P इम्प्लाइज Q का, तो इसका नेगेशन लिखा जाएगा उल्टे सेंस में कि पहले Q का नेगेशन इम्प्लाइज P का नेगेशन, ये लिखा जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही बात? अब देखो ये स्टेटमेंट पढ़ो, ये जो एग्जांपल है, if my car is in the repair shop then I cannot go to the market। फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ो, पढ़े? तो इसमें ये वाला पार्ट मान लो P हो गया, तो ये वाला पार्ट मान लो Q हो गया। ये बात समझ में आई? Yes. तो यहाँ पे क्या इम्प्लाई कर रहा है कि अगर कार रिपेयर शॉप में थी तो वो मार्केट नहीं जा सकता, यही तो इम्प्लाइज है इसका। Yes, sir. अब हमें इस पूरी कंपाउंड स्टेटमेंट का नेगेशन लेना है, तो इसका नेगेशन देखो अब क्या बनेगा कि इस पहले इस पे नेगेशन लगेगा देन ये इम्प्लाइज होगा। तो देखो पहले क्या है, माई कार इज नॉट इन रिपेयर शॉप, ये P का नेगेशन है, ये Q का। अब हमें पूरे इम्प्लाइज का नेगेशन लिखना है, तो देखो ये स्टेटमेंट बनेगी, आई कैन नॉट गो टू द मार्केट। इसका मतलब पहले इस स्टेटमेंट का नेगेशन आया, ये चीज क्या है, ये P नेगेशन है या नहीं है, Q नेगेशन? क्यों नहीं? देन इसने क्या इम्प्लाई किया, देन माई कार इज इन रिपेयर शॉप, तो इसने पहले वाला इम्प्लाई किया, उल्टा हो या नहीं हुआ? Yes. तो हमें बस ये याद रखना है, कंडीशनल में अगर हमें नेगेशन लेना है तो अपोजिट कर देना है, P से Q इम्प्लाइज था तो Q से P इम्प्लाइज कर देना है। ठीक है, Yes. अब बस ये कहानी खत्म हुई। ये इसका फाइनल है कि हमें ये सिंबल्स याद रखने हैं और इनके ट्रुथ टेबल याद रखने हैं। ये सिंबल एंड का था, ये और का था, ये नॉट का था, ये इम्प्लाइज का था, ठीक है, और ये बाई कंडीशनल का था। बस ये ही इसमें इतना ही पढ़ना है और बाकी कुछ नहीं पढ़ना, बस क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बताओ कोई दिक्कत? No, sir. ठीक है, अब चलो कुछ क्वेश्चंस ट्राई करते हैं वन बाय वन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, हमें बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट is ऑप्शन ए गिवन है मेरे पास, ऑप्शन बी गिवन है हमारे पास, ऑप्शन सी है ये ऑप्शन है। तो हमें वन बाय वन हर किसी की ट्रुथ टेबल बनानी होगी और चेक करनी होगी। तो हमें इसके लिए क्या चेक करना होगा बताओ, रिजल्ट कैसे आने चाहिए? सारे रिजल्ट ट्रू आने चाहिए। Yes. सारे true. हाँ, तो पहले सबसे पहले वाला ऑप्शन ए चेक करते हैं। ऑप्शन ए क्या लिखा हुआ है, ये है। तो सबसे पहले हम स्टेटमेंट बना लेते हैं P। चलो पहले एक ही में चेक कर लेते हैं, यहाँ पे चेक कर लेते हैं एक साथ साथ। यहाँ P बना लेते हैं, यहाँ Q बना लेते हैं। तो ये ट्रू होगा तो ये भी ट्रू होगा, ये ट्रू तो ये फॉल्स हो गया, ये फॉल्स से ट्रू हो गया तो ये फॉल्स हो गया, ये फॉल्स हो गया। ठीक है, अब देखो पहले में हमें सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा, ये बनाना पड़ेगा क्योंकि P तो गिवन ही है, P implies Q। तो बताओ पहले केस में क्या लिखेंगे, इसके लिए क्या याद रखना था हमें, इम्प्लाइज के लिए कि रिजल्ट फॉल्स है तो फिर फॉल्स। देखो ये पहले केस में क्या होगा, ट्रू होगा। Yes.
दूसरे केस में ट्रू होगा, इस केस में फॉल्स होगा और इस केस में ट्रू होगा। केवल ये एक ही केस में फॉल्स होता है जब पहला ट्रू और दूसरा फॉल्स हो। ठीक है, ये मतलब फाइनल रिजल्ट फॉल्स है लेकिन बेसिक कंडीशन सेटिस्फाइड थी। ठीक है, अब इसको इसके साथ क्या बनाना है हमें, ये क्या है, एंड है, इसके साथ पी का एंड बनाना है, तो इसके साथ हम पी का एंड बनाते हैं। तो बताओ इन दोनों में, इसमें और इसमें एंड लगाना है, तो पहले ट्रू आएगा। अब बताओ इसमें और इसमें लगा रहे हैं, तो सेकंड वाला क्या आएगा, फॉल्स आएगा। यस, थर्ड वाला, फॉल्स, फोर्थ वाला, तो ये वाला कंपोनेंट बन गया हमारा, ये वाला। अब इसका एप्लीकेशन लगाना है किसके साथ, क्यू के साथ, तो इसका मतलब इस ये जो रिजल्ट आया इसका हमें क्या लगाना है, क्यू के साथ इम्प्लीकेशन लगाना है। अब हमें बनाना है ये बनाना ये है है टोटोलॉजी, क्या, ये है टोटोलॉजी स्टेटमेंट। अच्छा चेक कर लिया आपने। यस ठीक है, तो बताओ पहले वाला क्या आना चाहिए। सर, ट्रू। भाई देखो हम क्या कर रहे हैं, इससे ये इंप्लाई कर रहे हैं ये फाइनल रिजल्ट है। ठीक है, ये दोनों ट्रू तो ट्रू ही आएगा। ठीक है, फाइनल वाला कौन है, क्यू, क्यू ट्रू लेकिन पहले वाला फॉल्स, तो फिर भी ट्रू ही आता था। दोनों फॉल्स में फिर भी ट्रू आता था। अब दोनों फॉल्स फिर भी ट्रू, तो ये टोटोलॉजी हो गया, तो हमारा पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, अब अगर मान लो आप ऑप्शन बी चेक करना चाहे, सी चेक करना चाहे, डी चेक करना चाहे, तो सेम तरीके से चेक कर सकते हैं कि वो है या नहीं। इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसमें, समझ में आ रही है। ये बस काम की चीज है, हमें टेबल बनानी आनी चाहिए। और एक क्वेश्चन आता है वो बिल्कुल इजी इसी तरीके का। कोई दिक्कत, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। कर चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमें ये बताना है क्वेश्चन में कि हमें स्टेटमेंट दी है P implies negation of P and negation of Q is इक्विवेलेंट टू। हमें ये बताना है कि ये स्टेटमेंट किसके इक्विवेलेंट है। इक्विवेलेंट का मतलब जो इनमें से गिवन रिजल्ट है किस रिजल्ट से मैच कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये इसका रिजल्ट निकालना पड़ेगा, फिर इनसे कंपेयर करना पड़ेगा। इक्विवेलेंट रिजल्ट का मतलब तो यही हो गया ना कि किन दोनों के रिजल्ट सेम आ रहे हैं। तो इसमें P एंड Q है तो बना लेते हैं। तो भाई टेबल बनाएंगे तो पहले दोनों ट्रू, बताओ। अब हमें पहले क्या बनाना है, पहले ये कंपोनेंट बनाना है, तो इसके लिए हमें क्या चाहिएगा, Q का नेगेशन चाहिएगा। अब हमें बनाना है P एंड नेगेशन ऑफ Q। तो बताओ इसका रिजल्ट क्या आएगा, जल्दी बताओ। तो सारे फॉल्स हैं। भाई हमें क्या बनाना है, एंड लगाना है इन दोनों में, इसमें और इसमें, तो फॉल्स आ गया यहाँ। इन दोनों में भी क्या आ गया, फॉल्स आ गया। इन दोनों में ट्रू आएगा ना,
दोनों ट्रू है ना ये, और इन दोनों में फिर से फॉल्स आ गया। बताओ सही है? यस। अब इसका क्या करना है, पी के साथ पहले इसका नेगेशन भी लेना। देखो यहाँ पे नेगेशन है, तो इसका भी नेगेशन बना लो। इसका नेगेशन मतलब ये ट्रू हो गया, ये ट्रू हो गया, ये फॉल्स हो गया, और ये ट्रू हो गया। बताओ समझ में आई बात? अब इसका क्या करना है, इंप्लाइज बनाना है पी के साथ। पी इंप्लाइज नेगेशन ऑफ दिस। तो हमें ये फाइनल रिजल्ट है, पी स्टार्टिंग रिजल्ट है, तो ये हमारा फाइनल दोनों ट्रू, तो क्या आएगा, ट्रू आएगा। ठीक है, ये हमारा फाइनल था, ये ट्रू, ये फॉल्स, तो भी ट्रू आएगा। ये फॉल्स, ये ट्रू, तो इस केस में फॉल्स आएगा। ठीक है, ये ट्रू लेकिन ये फॉल्स, इस केस में हमारा ट्रू आएगा। बताओ समझ में आई बात? यस। अब हमें ये बनाने हैं, अगर हम इस रिजल्ट को पहले ऑप्शन क्यू से चेक करता हूं, तो क्यू के रिजल्ट से मैच कर रहा है ये? नहीं, इसमें आके डिफरेंट हो गया, तो ये ऑप्शन हट गया पहले वाला, भाई ये वाला ऑप्शन कट गया। बताओ, यस। अब हमें ये वाला ऑप्शन चाहिए। ये वाला ऑप्शन कहीं बनाया हमने भाई, नेगेशन ऑफ पी एंड क्यू? नहीं, तो हमें नेगेशन ऑफ पी भी चाहिए। तो नेगेशन ऑफ पी हम बना लेते, कहीं यही बना लेते हैं। चलो नेगेशन ऑफ पी यहाँ लिख देता हूँ, तो क्या होगा, फॉल्स, ट्रू, फॉल्स, ट्रू। इसका क्या बनाना है हमें, ये बनाना है, दैट इज पी एंड क्यू। तो हमें इन दोनों में लगाना है एंड। तो पहला क्या आएगा, फॉल्स आएगा भाई, यहां से देखो। यस। दूसरा क्या आएगा, ट्रू आएगा। यस सर। दूसरा ट्रू आएगा। तीसरा क्या आएगा, फॉल्स। फॉल्स। और फोर्थ भी फॉल्स। false। अब देखो ये लाइन इससे मैच करी, एग्जैक्टली मैच करनी चाहिए, ऐसा नहीं कि दो ट्रू मैच करके, क्योंकि हम पैटर्न सेम रख रहे हैं, तो हमारा रिजल्ट एग्जैक्टली मैच करना चाहिए। नहीं किया तो इसका मतलब ये भी हट गया। अब ऑप्शन सी पे आते हैं, तो सी पे क्या चाहिए, नेगेशन ऑफ पी और नेगेशन ऑफ क्यू। नेगेशन ऑफ पी है, नेगेशन ऑफ क्यू है, कौन सा लगाना है, और लगाना है। ठीक है, तो नेगेशन ऑफ पी और नेगेशन ऑफ क्यू, और रिजल्ट लगाना है इसमें और इसमें। तो बताओ फॉल्स, फॉल्स के केस में क्या होगा, फॉल्स होगा। ट्रू और फॉल्स, एक भी ट्रू तो ट्रू आएगा रिजल्ट, एक भी ट्रू तो रिजल्ट ट्रू आएगा। तो बताओ ये वाली स्टेटमेंट, ये वाली लाइन इससे मैच कर रही है, नहीं कर रही है? नहीं करी, क्योंकि इसका तो पहला फॉल्स है, इसका पहला ही ट्रू है। तो ये भी हट गया। अब ऑप्शन डी चेक करते हैं, इन दोनों में एंड ऑपरेशन लगाना है। अब बताओ इन दोनों में ये दोनों फॉल्स है, तो क्या होगा, फॉल्स आएगा। यस सर। तो यहाँ पे आया मेरा फॉल्स। ठीक है, और फिर था एंड ऑपरेशन लगा देते ना, यहाँ भी फॉल्स आया। ठीक है, और फिर था ये और ये, यहाँ भी क्या आया, फॉल्स आया। यहाँ ट्रू आया। तो कोई मिस्टेक हुई है क्या, एक मिनट, उस क्वेश्चन में गलत लिखा गया हमने। क्वेश्चन था पी इंप्लाइज, इसका नेगेशन
हाँ, इसका एक और चीज दी हुई है, इस ओवरऑल स्टेटमेंट में लिखा हुआ है इसका नेगेशन, नेगेशन ऑफ दिस लिखा हुआ है, कॉन्ट्रा पॉजिटिव या नेगेशन ऑफ दिस। तो इसका मतलब हमें इसके अपोजिट से चेक करना है। तो इसका अपोजिट क्या होगा? फॉल्स, फॉल्स, ट्रू और फॉल्स, ये लिखा। तो बताओ इस लाइन से कौन सा मैच करेगा? So I think वो negation P and negation Q नहीं, ये मैच करेगा, ये वाला ऑप्शन में कुछ गड़बड़ है, ये मैच करेगा, ये आंसर होना चाहिए। ठीक है, समझ में आई बात? ये मैच कर रहा है ना, तो आंसर में कुछ, ये ऑप्शन में कुछ गड़बड़ है, तो हमारा ये होना चाहिए। इसलिए यहाँ नेगेशन नहीं होना चाहिए। अगर ऑप्शन डी सही है तो यहाँ नेगेशन नहीं होना चाहिए, ये मैच करेगा। समझ में आई बात? कुछ वो लिखने में गलती हो रही है सिंबल में, ठीक है? तो बाकी समझ में आया क्वेश्चन? हाँ यस। तो अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो पिछले साल में आए हैं, ठीक है? तो ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा हुआ है, पहले क्वेश्चन पढ़ो कि क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया, क्या पूछना चाह रहे हैं। कह रहा है कि ये एक स्टेटमेंट है, यहाँ पे कुछ उसने इस तरह के सिंबल यूज कर लिया। कह रहा है कि यहाँ पे जो सिंबल यूज हो सकते हैं वो इनमें से कोई सिंबल है, तो ये बताना है कि इनमें से कौन से करेक्ट सिंबल यहाँ पे यूज किया जाए, ये इक्विवेलेंट हो जाए इसके। ठीक है, ये बताना है। तो इसका मतलब हमें वन बाय वन यहाँ पे ये सिंबल यूज करने पड़ेंगे और चेक करना पड़ेगा चारों ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो चलो हम पहले चेक करते हैं, जो ऑप्शन करेक्ट है हमारा सी, उसी के अकॉर्डिंग चेक करते हैं जो सही है या नहीं। तो हमारा जो ये स्टेटमेंट है, तो इसको कैसे लिखेंगे? पी, पहले स्टेटमेंट को किससे रिप्लेस करना है? एंड से, इस सिंबल की जगह। और क्यू, फिर है हमारे पास अगेन एंड, यहाँ पे नेगेशन ऑफ पी, और इसकी जगह में क्या रिप्लेस कर दिया? ये और वाला, और यहाँ पे क्या लिखा है? क्यू। और हमें ये चेक करना है ये इक्विवेलेंट है इसके पी एंड क्यू, इस पर्टिकुलर सिंबल के लिए। क्योंकि हमें ये सिंबल फ्लिप, ऐसा मान लो यहाँ पे कोई ब्लैंक है, यहाँ पे कोई ब्लैंक है, और ये दो पॉसिबल आंसर है, तो इनमें से ये बताना है कि कौन सा आंसर कहाँ सही है। ठीक है, पहले पे कौन सा आएगा, दूसरा, ये चार पॉसिबिलिटी। ठीक है, तो मैं चारों नहीं चेक कर रहा हूँ, मैं ये सी चेक कर रहा हूँ। ठीक है, समझ में आई बात? यस। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये जेई में आया हुआ क्वेश्चन। तो सर दोनों का पैटर्न सेम होना चाहिए ट्रुथ टेबल का, बस हाँ, यही है। हाँ, तो अब इसका टेबल बनाना स्टार्ट करते हैं, चेक करते हैं। तो भाई वही पी एंड क्यू बना लेते हैं। ये ट्रू, ये फॉल्स, तो ये ट्रू हो गया। ठीक है, ये ट्रू तो ये फॉल्स हो गया, ये दोनों false। ठीक है, पहला हमें क्या चाहिए? पी एंड क्यू, तो पी एंड क्यू बना लेते हैं। तो पहला रिजल्ट क्या आएगा? ट्रू आएगा। दूसरा, ठीक है, फिर हमें चाहिए नेगेशन ऑफ पी, नेगेशन ऑफ पी बना देते हैं। नेगेशन ऑफ पी बनाएंगे तो फॉल्स आएगा, ट्रू आएगा, फॉल्स आएगा और ट्रू आएगा। ठीक है, बताओ ये समझ में आया नेगेशन ऑफ पी? अब ये वाला कंपोनेंट बनाते हैं, नेगेशन ऑफ पी और क्यू। तो बताओ इसके रिजल्ट क्या होंगे? बोलो, फर्स्ट पे क्या आना चाहिए? इन दोनों को अगर हम देखते हैं तो फर्स्ट पे क्या आना चाहिए? ट्रू आना चाहिए। अच्छा, और है ट्रू, और है ना, ऊपर है। इन दोनों पे क्या आना चाहिए? और इन दोनों में एक ट्रू तो ट्रू हो जाएगा और के केस में। अब हमें इन दोनों कंपोनेंट में एंड बनाना है, मतलब इसके अंदर और इसके अंदर एंड बनाना है। तो ये था पी एंड क्यू, इसमें एंड लगाना है, तो इसके और इसके अंदर एंड लगाएंगे तो दोनों ट्रू तो ट्रू आया, एक भी फॉल्स तो रिजल्ट फॉल्स आएगा। यस सर। ठीक है, एक भी फॉल्स तो रिजल्ट फॉल्स आएगा।
एक भी फॉल्स तो रिजल्ट फॉल्स है। तो देखो ये मैच कर रहा है नहीं कर रहा है इसके रिजल्ट से, भाई इसी का इक्विवेलेंट बोला है ना इसने। हाँ यस। तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन सही था, बाकी सिंबल चेक करेंगे तो वो गलत आ जाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से चेक करना है कि पहले स्टेटमेंट में पुट कर दो और फिर उसको बना के देख लो। ठीक है, ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चंस में काउंट हो रहा है बिकॉज इसमें हमें 4 बार चेक करना पड़ेगा, वरना इतना लंबा क्वेश्चंस कभी कभी आता है। ठीक है, वरना सिंपल क्वेश्चन आते हैं ऐसे कि लॉजिकल स्टेटमेंट किसके इक्विवेलेंट है, तो हमें ये बनाना है और ऑप्शन बनाना है सीधे। ठीक है, तो ट्राई करो ये वाला। ये खुद से ट्राई करो और चेक करो। ठीक है, आराम से। मोस्टली स्टूडेंट क्या करते हैं ना, इसे छोड़ देते हैं और यहाँ से एक क्वेश्चन आना होता है, श्योर क्वेश्चन होता है और इजी क्वेश्चन होता है। बस ये टेबल बनाना आ जाए तो क्वेश्चन पक्का होता है, गलती होने के चांसेस इसमें कम ही होते हैं, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो होती नहीं है, बस ट्रुथ टेबल ढंग से बनाओ। कर पा रहे हो? यस। हो गया वेरीफाई? अभी कर रहा है। सर जो लेफ्ट में जो स्टेटमेंट लिखी है वो नेगेशन ऑफ नेगेशन पी ऑफ पी और क्यों है ना? इसका नेगेशन बनेगा, इसका फिर और लगाना है। तो फिर 2 बार नेगेशन हो रहा है ना इसका। पहले ये वाला कंपोनेंट बनाओ, फिर Yes. इस पे नेगेशन लो, फिर इसके साथ और करो। यस तो फिर ये पूरे का नेगेशन नहीं है ना, वो जो एंड वाला है वो पूरे बस पे side पे। नेगेशन होता तो यहाँ होता ना। हाँ यस वही।
आया आंसर? तो अभी तो पहली स्टेटमेंट का ही कर रहा हूँ, मतलब अच्छा। लॉजिकल स्टेटमेंट। ये बना रहा है या आंसर चेक कर? तो अभी पहले ट्रुथ टेबल बना रहा हूँ, पहले अच्छा, लॉजिकल इसका स्टेटमेंट। यस इसमें 3 कंपोनेंट है ना, तो थोड़ा टाइम लगेगा, पहले ये बनाना पड़ेगा। यस चलो इस क्वेश्चन को ना अभी छोड़ दे, क्योंकि इसमें आर भी है तो बहुत ज्यादा कंपोनेंट हो रहे हैं, मैं इसको बाद में लेता हूँ क्योंकि लेंथी हो रहा है। बिकॉज इसमें आर है तो 8 पॉसिबिलिटी बनेगी, 4 पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी इसमें, 3 कॉइन वाला केस हो गया है, समझ रहे हैं? आर भी आ रहा है इसमें। हाँ यस, 8 पॉसिबिलिटीज। हाँ, तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, इसको बाद में लेते हैं। कोई छोटा क्वेश्चन है। ये वाला करो, इक्विवेलेंट वाला करो, ये पी एंड क्यू 2 पे बेस्ड है। ये बताना है कि हमें ये इसके इक्विवेलेंट है, इस तरह का क्वेश्चन हमने किया था अभी। ठीक है, तो पहले ये बनाओ और फिर इनमें से चेक कर लो किसके इक्विवेलेंट। चलो आप बताओ, मैं बनाता हूँ साथ में, ठीक है? तो पहले पी बनाया होगा, फिर क्यू बनाया होगा, ट्रू ट्रू बनाया होगा, फिर फॉल्स ट्रू बनाया होगा, ट्रू पहले फॉल्स। ट्रू फॉल्स बनाया, पहले अच्छा, कौन सा बनाया था बताओ? ट्रू ट्रू फिर ट्रू फॉल्स फिर उल्टा। ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू, फिर फॉल्स फॉल्स। अच्छा उसके बाद क्या बनाया है? ये वाला कंपोनेंट बनाया है, एंड वाला, पी एंड क्यू। ये पहला कंपोनेंट ना, ये यस पी एंड क्यू, ठीक है? ये कंपोनेंट बना दो। पी एंड क्यू में तो बस क्या होगा, जहां पे दोनों ट्रू वही ट्रू, बाकी सब फॉल्स ही आने हैं। यस। अब बात करते हैं दूसरा कंपोनेंट क्या बनाना है नेक्स्ट। नेगेशन क्यू। नेगेशन क्यू और नेगेशन पी दोनों चीजें एक साथ ही बना दो। नेगेशन पी भी बना लेते हैं, नेगेशन क्यू भी बना लेते हैं। तो नेगेशन पी में ये क्या हो गया, फॉल्स, ये हो गया फॉल्स, ये हो गया ट्रू, ये हो गया ट्रू। नेगेशन क्यू में ये हो गया फॉल्स, ये हो गया ट्रू, ये हो गया फॉल्स, ये हो गया ट्रू, दोनों बन गए। यस अब बात करते हैं इसकी, तो ये था पी और नेगेशन क्यू, यही है ये वाला कंपोनेंट, हाँ यस। ठीक है? तो पी कहाँ है, ये रहा, नेगेशन क्यू है यहाँ पे, और लगाना है इसमें, और इसमें और लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, ट्रू आएगा, ट्रू ट्रू फॉल्स। ये भी ट्रू, फिर फॉल्स, और ये फाइनली फिर से ट्रू, ट्रू है। क्योंकि और है, ठीक है? अब हमें पहले ये बना लेते हैं, फिर इसके बाद इन दोनों को कलेक्ट कर लेंगे, ठीक है? पहले इसको मैं मिटा देता हूँ दिखने अच्छे से, क्योंकि इस पे बड़ा ब्रैकेट लगा है ना एक और, तो पहले ये वाला कंपोनेंट बना लेते हैं जहाँ दोनों के नेगेशन में एंड लगा है। दोनों के नेगेशन में एंड लगाएंगे तो ये क्या हो गया, फॉल्स, ये भी फॉल्स, ये भी फॉल्स, और फाइनल वाला ट्रू, ठीक है? तो ये थर्ड वाला कंपोनेंट भी बन गया, ये वाला। अब हमें इन दोनों को क्लब करना है, इनके बीच में क्या लगाना है, और, ठीक है? तो हमें ये बनाना है पी एंड क्यू, इनके बीच लगाना है और,
पी एंड क्या था ये, और नेगेशन ऑफ, ये बनाना है, ठीक है। तो ये कौन कौन से कंपोनेंट है, ये वाला कंपोनेंट और ये वाला कंपोनेंट, इन दोनों के बीच और लगाना है ना, ठीक है। ये पहले वाला पूरा बना रहे हो, समझ रहे हो, ये जो कंप्लीट इतना बॉक्स हाँ, ये yes. बना रहे हो। तो हमें इस स्टेटमेंट और इस स्टेटमेंट के बीच में और लगाना है, तो दोनों ट्रू तो क्या आएगा, आंसर ट्रू आएगा। Yes, sir. अच्छा, ये भी ट्रू और ये फॉल्स, तो आंसर ट्रू आएगा, और है Yes, sir. ये फॉल्स और ये फॉल्स, तो यहाँ फॉल्स आएगा, False. Very true. ये फिर से ट्रू आ गया। अच्छा, अब हमें क्या करना था, इस कंपोनेंट का कंप्लीट का एंड लगाना था इस कंपोनेंट के साथ, इसके साथ, ठीक है, इस वाले के साथ। तो ये था फॉल्स, ये ट्रू। तो यहाँ पे मैं बना रहा हूँ कि जो भी लॉजिकल स्टेटमेंट थी मैं इसको एल से लिख दे रहा हूँ, ठीक है। लॉजिकल स्टेटमेंट जो हमारा पूरा स्टेटमेंट था, ठीक है, बड़ा सा ये नहीं लिख रहा हूँ, समझ गए। Yes, sir. इस पूरे को मैं बोल दे रहा हूँ लॉजिकल स्टेटमेंट, ठीक है। तो अब हमें इस रिजल्ट में और इस रिजल्ट में बीच में लगाना है एंड। तो ये वाला रिजल्ट ये रहा और ये रिजल्ट ये रहा, तो एक दोनों में से पहली में क्या आएगा, फॉल्स आएगा, क्योंकि ये फॉल्स है, False. Last वाला दूसरा true होगा. फॉल्स और ये फॉल्स, तीसरे वाला ट्रू। अब हमें चेक करना है इनमें से किसके इक्वल है। तो पहला था पी एंड क्यू, तो पी एंड क्यू हम शायद बनाए थे, ये रहा। तो चेक करो इसके इक्वल है ये, No, sir. रेड वाला नहीं, तो ये हट गया। ऑप्शन बी चेक करें, ये वाला कंपोनेंट बनाया था कहीं, नहीं ये नहीं बनाया, ये बनाना पड़ेगा। ये था पी एंड नेगेशन ऑफ क्यू, यही था ना, बी ऑप्शन, ठीक है। तो पी ये रहा, नेगेशन ऑफ क्यू ये रहा। तो बताओ पहला आंसर क्या आना चाहिए, एंड लगाना है तो फॉल्स, दूसरा आंसर क्या आना चाहिए, True आ रहा है. तो ये तो वैसे ही मिसमैच करके आगे बनाने की जरूरत नहीं है, Yes. ठीक है। तो मतलब ये ऑप्शन भी हट गया। अब थर्ड पे आते हैं। थर्ड पे था नेगेशन पी नेगेशन क्यू के बीच एंड, नेगेशन पी और इसके ये वाला हम बना चुके हैं, ये रहा, ये दोनों equivalent है. ठीक है, ये वाला बनाया ना हमने, ये रहा। तो ये चेक कर रहे और हमारा ये रिजल्ट चेक करें, तो दोनों सेम ही रिजल्ट है। Yes. तो इसका मतलब हमारा आंसर सी करेक्ट हो गया। ऐसे ही हम डी को वेरीफाई कर सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, हाँ, ठीक है। sir. D भी नहीं है. C yes, sir. चलो चलो ये वाला चेक करो। इसमें तो यहाँ कुछ गायब है, या क्यों होगा और तो क्या होगा, क्यों होगा। हाँ, Q ignore. आया इसका आंसर। सर पहला तो आ गया, बाकी तीन चेक करो.
अच्छा पहले ट्रू आया, मैच कर दिया। पहला ट्रू है। ऑप्शन ए ही है वैसे आंसर तो, बाकी मैच चेक कर सकते हो कि मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अब देखो ये पढ़ो, कॉन्ट्रापोजिटिव वाला चीज सिखाई थी मैंने आपको, इस तरह का कई बार थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है, ये पढ़ो। अब इसमें दो सर स्टेटमेंट ए है होगा आंसर। भाई। पहला स्टेटमेंट क्या है, इफ यू आर बोर्न इन इंडिया, ये पी स्टेटमेंट हो गया। देन का मतलब इम्प्लाइज यू आर ए सिटीजन ऑफ इंडिया, तो ये क्यू स्टेटमेंट हो गया। हमें इसका क्या बनाना है, पी इम्प्लाइज क्यू का क्या बनाना है, नेगेशन क्यू इम्प्लाइज नेगेशन क्यू। तो नेगेशन क्यू इम्प्लाइज नेगेशन क्यू, ये रीड करना है, ठीक है। तो पहले Yes. लास्ट वाले स्टेटमेंट पे क्या लगना चाहिए, एंड नोट लगना चाहिए ना। तो पहले लिखा है यू आर नॉट ए सिटीजन ऑफ इंडिया, तो देखो ये बदल गया, ठीक है। Yes, sir. और फिर लिखा है देन यू आर नॉट ए बोर्न इन इंडिया, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। बस इतना सा लॉजिक था, Yes. इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया, ठीक है। तो ऑप्शन ए करेक्ट है, बाकी रीड करोगे गलत मिलेगा। और इस पे एक नहीं 2-3 बार क्वेश्चन आया इस चीज पे। इस पे एक और क्वेश्चन आया था, वो दिखाता हूँ। हाँ ये क्वेश्चन आया था इसी तरीके इम्प्लाइज पे, तो ये बोला था कि इसका फाइनल रिजल्ट फॉल्स है, तो ये बताना है कि कौन सा टेबल होना चाहिए पी क्यू आर के। इस फॉल्स का मतलब कि ये फैलेसी है, सारे पॉसिबिलिटीज फॉल्स है। सारे पॉसिबिलिटी नहीं, हमें यही पॉसिबिलिटी चेक करना है। देखो इम्प्लाइज है, पी इम्प्लाइज, इसको कोई एक स्टेटमेंट मान लेते हैं, ये फॉल्स है, तो ये फॉल्स कब रह सकता है, जब फाइनल रिजल्ट फॉल्स हो। ये ट्रू, ये एक ही केस में फॉल्स होता था, याद है। बाकी सब जगह ये ट्रू होता था ना इम्प्लाइज वाला। यस सर। तो इसका मतलब हमारे पास ये आया कि ये वाला रिजल्ट फॉल्स आया, तो ये वाला रिजल्ट फॉल्स आने के लिए इन दोनों में क्या लगा हुआ है, और लगा हुआ है। और वाला रिजल्ट फॉल्स कब आ सकता है, जब क्यू भी फॉल्स हो और आर भी फॉल्स हो। समझ रहे हो बात। सर ट्रूथ वैल्यूज क्या होता है? ट्रुथ वैल्यूज ट्रुथ टेबल को ही कहते हैं, जो ट्रू फॉल्स हम लिखते हैं ना, वो वैल्यूज के ट्रुथ है। ओके सर। वो ये जो वैल्यूज है ना, तो ट्रू फॉल्स इन्हें वैल्यूज होते हैं, ट्रुथ वैल्यू, ठीक है। तो देखो हमें दिया हुआ है P implies Q और R, ये दिया हुआ है, और बोला है कि ये रिजल्ट क्या है, फॉल्स है। अब ये बताओ इसका फॉल्स होने का मतलब क्या समझ में आया, इसे अभी एक स्टेटमेंट कंसीडर करो पहले। ये फॉल्स कब होता था, इंप्लीकेशन कंडीशनल वाला स्टेटमेंट फॉल्स कब होता था, जब पहला ट्रू हो और दूसरा फॉल्स हो। हाँ पहला ट्रू और दूसरा फॉल्स हो, ये बात समझो। अब देखो, अब इस पे देखो कि ये जो कंडीशन है पूरी, ये पूरी फॉल्स आए। इसको अगर आप रीड करें तो इसमें तो और था, ये दोनों पार्ट क्या होने चाहिए अगर ये फॉल्स आए हमेशा, दोनों फॉल्स है सर। तो इसका मतलब Q भी फॉल्स होना चाहिए और R भी फॉल्स होना चाहिए, और ये ट्रू होना चाहिए, तो ये तीनों वैल्यू आ गई। यस। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अब देखो ये ट्यूटोलॉजी पे पूछा है कि कौन सा ट्यूटोलॉजी है, ठीक है, तो ये ट्राई करो। अब हमें इसमें ऑप्शन वाइज चेक करना पड़ेगा, क्योंकि उसने 4 ऑप्शन दे दिए और ये पूछा कि कौन सा ट्यूटोलॉजी है।
तो पहला तो नहीं है। पहला नहीं है, चलो ऑप्शन बी दिया हुआ है तो सेकंड वाला आना चाहिए, चेक करो। हाँ सर, बी तो आ गया। बी आ गया, तो बस ये इसी तरीके से चेक करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। यस। ये इक्विवेलेंट का क्वेश्चन है, इसे नोट कर लो, इसे ट्राई करना। ये एस होगा। अब देखो यहाँ पे ना एक चीज गलती हो जाती है, यहाँ पे देखो एक वर्ड यूज किया है नेगेशन, तो पहले इस जो भी स्टेटमेंट है इस कंप्लीट का नेगेशन लेना होगा, ठीक है। इसके कारण ये अक्सर गलती होती है ऑप्शन लगाने में, ये वर्ड यूज कर देते हैं कई। इसलिए ये कर रहे हो इसे सॉल्व। फिर भी लिख लिया। वैसे ये तो जल्दी हो जाएगा, इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं है, दो का नेगेशन है, दो स्टेटमेंट है, एस होगा, टीपीएस। अब देखो ये फिर से वैसा ही क्वेश्चन है, वैल्यू पहचानने वाला, तो ये बताओ इसका आंसर क्या होना चाहिए। फिर से वही सेम चीज दी हुई है कि ये इसका आउटपुट फॉल्स है हमारे पास, तो रेस्पेक्टिव वैल्यू क्या होनी चाहिए, पी क्यू आर। तो सर ये टी टी एफ होना चाहिए। टीटीएफ ऑप्शन ए, हाँ बिल्कुल ठीक है। पहचानना आ गया ना कैसे निकाल रहे हैं हाँ यस। ये फिर से इक्विवेलेंट का क्वेश्चन है, चलो इसे तो कर लेते हैं, छोटे से क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहले पी है और क्यू है, तो एक जगह पी बना लेते हैं, एक जगह क्यू बना लेते हैं। पी ट्रू, ट्रू, यहाँ ट्रू तो यहाँ फॉल्स हो गया, यहाँ फॉल्स तो यहाँ ट्रू हो गया, यहाँ दोनों फॉल्स हो गया, ठीक है। फिर हमें क्या चाहिए, नेगेशन ऑफ क्यू चाहिए। ऑप्शन में पी है, नेगेशन कहाँ और है, चलो दोनों बना लेते हैं। हमें चाहिए नेगेशन ऑफ पी, ये हो गया फॉल्स, ये हो गया फॉल्स, ये हो गया ट्रू, ये हो गया ट्रू, ठीक है। और अब हमें क्या बनाना है, P implies negation of Q। ये फाइनल, मैंने किसका नेगेशन बना दिया, P का, तो Q का बनाना पड़ेगा। Q का नेगेशन बनाएंगे तो आएगा फॉल्स, ट्रू, फॉल्स, ठीक है। अब हमारे पास है P implies Q, तो Q का नेगेशन ये है और P ये है, तो ये फॉल्स तो ओवरऑल रिजल्ट फॉल्स, ये ट्रू तो रिजल्ट ट्रू, ये फॉल्स तो अगेन रिजल्ट ट्रू, ये ट्रू लेकिन ये फॉल्स तो रिजल्ट, ठीक है। ये बन गया। अब इस पे भी देखो, इस पे क्या लगा हुआ है, नेगेशन, तो इसका भी नेगेशन बना, तो इसका मतलब ये ट्रू, बाकी सब फॉल्स, फॉल्स। अब चेक करते हैं ऑप्शन है पी एंड क्यू, पी एंड क्यू बनाएंगे
P and Q, तो पहला तो ये सही है। तो ये दोनों false, तो false, इस केस में false, तो मैच कर रहे हैं। यस हाँ, तो यही आंसर है। तो सर एक से ज्यादा नहीं होता ना ऑप्शंस? मेंस में एक से ज्यादा ऑप्शन नहीं आता, एडवांस में आते हैं। एडवांस में इसका क्वेश्चन आता ही नहीं है, मेंस में आता है। अच्छा हाँ, और मेंस में ये एक ऐसा क्वेश्चन होता है कि अगर इसे पढ़ा हुआ है तो आप कर लोगे, बाकी स्टूडेंट इसे छोड़ के आते हैं क्योंकि पढ़ते ही नहीं है इस चीज को, उसे लगता है कि पता नहीं क्या है ये लॉजिकल। टफ नहीं है बिल्कुल, अगर थोड़ा सा भी बस एक बार पढ़ लो तो क्वेश्चन हो जाएगा। इतना ही है इसमें, ज्यादा कुछ है नहीं बस। ठीक है, यस बस ये जो फाइनल ट्रुथ टेबल है ये बनाना आना चाहिए, और इन सिंबल्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो चाहो तो आप ये इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो याद रखने के लिए, अगर दिक्कत है तो कुछ काम है। एक तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो कि भाई किस सिंबल का क्या मीनिंग है। ठीक है, ये वाली चीज काम की है। यस ले लिया। ठीक है, और एक जो था हमारे काम की टेबल, एक कॉन्ट्राडिक्शन थी, ये तो याद ही है कि सारे क्या होने चाहिए, फॉल्स आने चाहिए, बाकी कुछ भी हो। ठीक है, ट्यूटोलॉजी में ये याद है कि सारे ट्रू आने चाहिए, इसका कोई दिक्कत नहीं है। और बस दिक्कत इसमें है एक तो बाई कंडीशनल में और एक कंडीशनल में, इनके ट्रुथ टेबल बस याद करने हैं। बाई कंडीशनल में क्या है, अगर रिजल्ट मैच करते हैं तो ट्रू आएगा, रिजल्ट मिसमैच करते हैं तो फॉल्स आएगा बाई कंडीशनल में। यस ठीक है, और कंडीशनल में क्या था कि हमारे पास फाइनल रिजल्ट रिजल्ट ट्रू आएगा तो फिर हो जाएगा, एक ही जगह फॉल्स आएगा, बाकी जगह ट्रू आएगा बस। बाकी एंड और तो कोई ज्यादा दिक्कत है नहीं, वो तो याद ही रहते हैं। यस ठीक है, ये इतना ही है इस चैप्टर में। चलो एंड करें। यस हाँ, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कुछ प्रैक्टिस करके देखना, हो जाएंगे सारे। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सर, चलो बाय बाय। गुड नाइट।